हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो स्टार्ट करते हैं। द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर। यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर की बात की गई है, किसमें? एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में। अंडर दिस सिस्टम द एग्जीक्यूटिव इज़ इंडिपेंडेंट फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव क्या है? इंडिपेंडेंट बॉडी है। In the opinion of Jattal, presidential government is that form in which the chief executive is independent of the legislature as to his tenure and to large extent as to his policies and acts. In this system, the head of the state is real executive. तो यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं? जो head of the state होता है वो ही real executive होता है, यानी कि president. According to D.V. Varne, the term presidential has been chosen because in this system the office of the head of the government and the head of the state is combined in president. यहाँ पे head of the government और head of the state दोनों ही कौन होता है? president होता है. The above definition summarizes two features of the presidential executive, that is its independence and non-responsibility to the legislature, एज वेल एज इट्स डेफिनेट टेन्योर एंड यूनाइटेड स्ट्रक्चर. तो यहाँ पे हमको ये पता चल गया कि वो इंडिपेंडेंट होता है, लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, उसका फिक्स टेन्योर होता है. तो दीज आर द फीचर्स ऑफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. कंट्रीज़ लाइक USA, ब्राज़ील, श्रीलंका एक्सेट्रा आर हैविंग प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. आप अपने एग्ज़ाम में जब आंसर लिखेंगे तो एग्जाम्पल्स डालेंगे तो और बेटर होगा. In a presidential system, the president is the head of the state as well as the head of the government. In this system, the office of president is very powerful. President का office क्या होता है? Powerful in theory and in practice both. As the executive is not responsible to the legislature for its policies and acts and is constitutionally independent of the legislature in terms of its office. उसके tenure से पहले उसको remove नहीं किया जा सकता है. In a presidential system, the head of the government is elected by citizens and is not responsible for gaining the confidence of an elected legislature to assume power, जैसे कि presidential form of government में होता है. तो यहाँ पे directly elect किया जाता है president. Because the legislature is also elected, the president is not granted the authority to dissolve it. क्योंकि अब legislature भी directly elect किए जाते हैं तो president के पास भी ये power नहीं होती है कि वो उसको dissolve कर पाए. Likewise, the legislature cannot dismiss the president. उसी तरह legislature के पास भी power नहीं होती कि वो president को उसके office से remove कर पाए. Unless they are convicted of serious misconduct through a process called impeachment. और तभी प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा सकता है तब जब देखा जाए कि उसकी कोई एक्ट या पॉलिसी अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो, और तब एक प्रोसेस होता है इम्पीचमेंट, उसके थ्रू प्रेसिडेंट को रिमूव किया जाता है. Presidential form of government is very much different from the parliamentary government in the sense that here the head of the government is elected by an elected legislature. और parliamentary form of government में क्या होता है? head of the government किसके थ्रू elect किया जाता है? legislature के थ्रू elect किया जाता है. तो अब हम पढ़ते हैं फीचर्स ऑफ द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. हेड ऑफ द स्टेट, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि प्रेसिडेंट जो होता है वो हेड ऑफ द स्टेट एज वेल एज हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है. नेक्स्ट इज डिसोसिएशन ऑफ पावर्स. द प्रेसिडेंशियल सिस्टम फंक्शंस ऑन द मेन प्रिंसिपल ऑफ डिसोसिएशन और सेपरेशन ऑफ पावर्स. यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर है किसके बीच में? एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में. इट डज नॉट वर्क ऑन द आइडिया ऑफ प्रोवाइडिंग पावर्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल सच एज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होता है. Political homogeneity. The presidential form of government encourages variety and does not adhere to the principle of homogeneity in the cabinet. और वो अपने कैबिनेट में डिफरेंट ओपिनियंस के मेंबर को रखते हैं और वर्क वो अपने अकॉर्डिंग ही करते हैं, बट ओपिनियन सबका लेते हैं ताकि बेटर फंक्शनिंग हो. द मेंबर्स कैन बी डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़. ये हमने पहले भी पढ़ा था. इलेक्शन ऑफ द लीडर, वो डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं. द प्रिंसिपल ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेज. ऑल द गवर्नमेंट ऑर्गन्स आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, दे स्टिल हैव द अथॉरिटी टू चेक एंड टू ऑब्जेक्ट टू एनी अनलॉफुल एक्ट ऑफ देयर काउंटर पार्ट्स. भले वो सेपरेट हैं, डिफरेंट ऑर्गन से सेपरेटेड हैं, लेकिन चेक्स एंड बैलेंसेस मेंटेन करके रखते हैं, आई बनाकर रखते हैं कि कोई अनलॉफुल एक्टिविटी तो नहीं हो रही है. तो अब इसके मेरिट्स पढ़ लेते हैं. One of the best benefits of a presidential system is that it can be proved to be the most appropriate solution in an emergency solution. Emergency solution में कैसे स्टूडेंट्स देखा जाता है, जैसे कोई इमरजेंसी आ जाती है किसी भी स्टेट में, कंट्री में, तो यहाँ पे जो है डिसीजंस लेना
क्विक होता है, डिसीजन मेकिंग क्विक होती है। अगर हम यहाँ पे इसी के साथ देखें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, तो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग बहुत स्लो होती है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्टर्स है, डिफरेंट डिफरेंट काउंसिल्स है, तो उन सब के थ्रू परमिशन ली जाती है, तो वो प्रोसेस काफ़ी स्लो हो जाता है। लेकिन यहाँ पे सारी पावर्स किसके हाथ में है? प्रेसिडेंट के हाथ में है, तो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग ईजी हो जाती है। सम ऑफ अदर मेरिट्स ऑफ द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखते हैं। सेपरेशन ऑफ पावर, सिंस द ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट आर ऑटोनॉमस फ्रॉम वन अनदर, एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंसी इज सिग्निफिकेंटली इंक्रीज, तो एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंटली वर्क करता है। नेक्स्ट इज एक्सपर्ट गवर्नमेंट, बिकॉज द प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट एक्सपर्ट्स इन न्यूमरस फील्ड्स। प्रेसिडेंट क्या है? डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से, जो कि अपने फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं, उनको अपॉइंट करते हैं अपने कैबिनेट में, टू लीड पर्टिनेंट डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज। द एग्जीक्यूटिव ब्रांच इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू बी मेड अप ऑफ लेजिस्लेचर, ज़रूरी नहीं कि लेजिस्लेचर से ही पूरा कैबिनेट को बनाए रखे। दिस विल गारंटी दैट द गवर्नमेंट कंप्राइजेज स्किल एंड नॉलेजेबल इंडिविजुअल्स। नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी, दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हैज़ स्टेबिलिटी, स्टेबल होता है। ही नीड नॉट टू बी वरीड अबाउट लूजिंग द गवर्नमेंट, क्योंकि टेन्योर उनका फिक्स्ड होता है, उससे पहले जब तक कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटी नहीं होती है, उससे पहले उनको रिमूव नहीं किया जा सकता। And not dependent on the legislative support. There is no threat of the government abruptly falling. तो बीच में ही सरकार गिरने जैसी, जैसे हमारे इंडिया में भी हुआ है, तो वैसी सिचुएशन वहाँ पर नहीं होती है। The president is not under any political duress to make choices. Next is limited influence of the party system, since the tenure of the government is set. पॉलिटिकल पार्टीज़ डू नॉट ट्राई टू ओवरथ्रो इट, क्योंकि टेन्योर फिक्स्ड है, तो इन बिटवीन डिफरेंट जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है, जो अपोजिशन में होती हैं, वो ट्राई नहीं करते हैं कि जो पार्टी है उसको ओवरथ्रो किया जाए। अपार्ट फ्रॉम दीज देर आर सम डीमेरिट्स एंड डिसएडवांटेजेस टू, कुछ कुछ अच्छाइयों के साथ कुछ कुछ बुराइयाँ भी होती है हर सिस्टम में, अब वो देख लेते हैं। अपार्ट फ्रॉम ऑल एडवांटेजेस दैट द प्रेजिडेंशियल सिस्टम हैज़, इट ऑल्सो पोजेसेस मैनी डिसएडवांटेजेस। अब पढ़ते हैं। Risk of despotism. The president is the only head of the state and the government, which increases the risk of becoming despotic. He enjoys absolute control and power over the whole country, and his tenure is also fixed. अब उसका tenure भी fixed है, सारी power भी उसके हाथ में है, सारे डिसीजन मेकिंग भी वही करता है। तो ऐसा ना हो कि वो डिस्पोटिक हो जाए और अपने अपने लिए काम करने लगे और लोग के बारे में सोचे ही ना, तो बोलते हैं ना एब्सोल्यूट पावर उसके हाथ में ना आ जाए। Possibility of a standoff due to the power separation between the executive and the legislative branches. There is always a possibility of a rift between the two organs of the government. क्योंकि डिफरेंट ऑर्गन से सेपरेशन है पावर्स का, तो उनमें हमेशा रिफ्ट बना रहता है कि किसी भी डिसीजन, कोई भी डिसीजन लिया जाता है, कोई भी पॉलिसी ली जाती है, तो उनमें वो रहता है, मतलब डिबेट रहती है, हमेशा रिफ्ट बना रहता है, तनाव का माहौल बना रहता है। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, अ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज ऑफन टाइटल्ड अ रिजिड वन है, फ्लेक्सिबल नहीं है, इट इज़ सेड टू बी अ नॉन फ्लेक्सिबल नेचर। Faulty system, owing to the separation of powers between the two branches of executive and legislative, there is a lack of harmony between the two. उनके बीच में हारमनी नहीं होती, ये भी हमने पढ़ लिया। This leads to decreased efficiency of the system. नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट इन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमने मेरिट्स देख लिया, डीमेरिट्स देख लिया, होता क्या है वो देख लिया। अब हम देखते हैं कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो पता लग गया, लेकिन उसमें प्रेसिडेंट के फंक्शंस क्या होते हैं वो देखते हैं। द प्रेसिडेंट इज एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म अ नंबर ऑफ ड्यूटीज़ एज अ पार्ट ऑफ द ऑफिस। अब वो ऑफिस होल्ड करता है, तो उसी के साथ साथ उसको नंबर ऑफ ड्यूटीज़ भी उसके साथ साथ आती है। तो पहला देखते हैं कमांडर इन चीफ। तो द प्रेसिडेंट इज़ द हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिसर इन द आर्म्ड सर्विसेज, तो वो कमांडर ऑफ चीफ भी होते हैं। चीफ ऑफ स्टेट, एवरी नेशन हैज़ एटलीस्ट वन पर्सन हु इज़ द सेरेमोनियल हेड ऑफ स्टेट, सेरेमोनियल हेड भी होते हैं वो। इन मोस्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट दिस रोल इज़ गिवन टू समवन अदर दैन चीफ एग्जीक्यूटिव। फॉर एग्जाम्पल इन ब्रिटेन द हेड ऑफ द स्टेट इज़ द क्वीन एक्टिंग एज द चीफ ऑफ स्टेट। ब्रिटेन में कौन है? क्वीन है। Acting as the chief of the state is the president's most visible function, whether meeting the heads of the other country. वही दूसरी कंट्रीज़ के हेड से मिलते हैं, मीटिंग करते हैं, सेरेमोनियल हेड होते हैं, वेलकमिंग एस्ट्रोनॉट्स और कॉलेज फुटबॉल चैम्पियंस टू द वाइट हाउस और ओपनिंग द ओलंपिक गेम्स। ये एग्जाम्पल है, आप एग्जाम्पल के साथ दे सकते हैं। Next is diplomat. The president not only decides the direction of foreign policy but also plays an important role in carrying it out. सिर्फ वो यही नहीं डिसाइड करते कि फॉरेन पॉलिसी जाएगी किस डायरेक्शन में, बट ये भी वो करते हैं कि वो किस तरीके से कैरी आउट होगी, किस तरीके से इम्प्लीमेंट होगी। ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एरा, फॉर एग्जाम्पल, फेस टू फेस मीटिंग्स बिटवीन लीडर्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द सोवियत यूनियन contributed to an easing of tensions and important arm control breakthroughs. Indeed, the relationship between
between Ronald Reagan and Mikhail Gorbachev was key to ending the Cold War. अब इन लोगों ने भी साथ में बैठकर मीटिंग की थी. ये भी उनके फॉरेन पॉलिसी का ही एक पार्ट है जिसमें उन्होंने आर्म्स कंट्रोल की बात की थी जिससे कि टेंशन उन लोग के बीच में कम हो. Next is chief executive. The president is the chief administration or chief bureaucrat of the nation and is ultimately responsible for all the programs in the executive branch. Responsible for seeing that all laws are faithfully executed. वो देखते हैं कि सारे laws अच्छी तरीके से execute किए गए हैं कि नहीं. A president sets a broad policy for the executive departments and agencies rather than managing their day-to-day operations. Legislator. A president does not simply propose legislation but is actively involved in seeing that it becomes law. वो सिर्फ legislation ही नहीं देखते but ये भी देखते हैं कि वो law बन रहा है कि नहीं. Next is moral leader. The president is expected to set the moral tone for the nation, including exemplary honesty, religious faith, and integrity. The character issue is frequently included in public opinion polls on a president's performance. Next is party leader. The president serves as a titular head. President को क्या बोला जाता है? Titular head भी बोला जाता है. Of a political party, a president is expected to support the party's platform. जिस पार्टी से वो आते हैं उसके प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करना, उसके लिए मनी रेज करना, उसके लिए कैंपेनिंग करना, तो वो पार्टी लीडर भी होते हैं. अब potential conflict exists between the president as national leader and as party leader. So lastly, conclusion. The presidential system of government may be traced back to medieval England, France and Scotland, where the monarch or crown, king or queen, and not the realm's estate had administrative authority, यानी कि पार्लियामेंट. तो यहाँ हम कहाँ से देख सकते हैं कितने medieval England से ये कॉन्सेप्ट आया है. This had an impact on the US constitutional writers who created the post of president, for which direct elections were to be held. The word president is derived from the Latin word, ये Latin word से आया है, presidens meaning governor. There are several kinds of governments in the globe such as the parliamentary, presidential and monarchical systems. The presidential system is one in which there are tight checks and balances. All the departments of government act independently of one another and the executive branch is not expected to be accountable to the legislative. तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो. प्लीज़ डू शेयर, like, comment and subscribe to my channel for more such informative videos. Thank you.